सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और आज सौदा आपका में क्रूड लगातार फिसल रहा है। क्या खरीदारी का ये मौका हो सकता है आपके लिए? सस्ते क्रूड से किन शहरों में फायदा नुकसान हम बताएंगे आपको आगे। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया भी लेकर आएंगे अपने मार्केट एक्सपर्ट का। और सरकारी राहत के बाद कौन सा स्टील शेयर खरीदें? दिल्ली में डीजल का रजिस्ट्रेशन पर रोक से किन शेयरों पर होगा असर? और अभी के बाजार में एफएनओ स्ट्रैटेजी क्या हो आपकी? साथ ही बजिंग स्टॉक्स पर फटाफट सलाह हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स की। लेकिन एक स्टॉक जो आज लगातार सुबह से बस्ट कर रहा है वो है स्टील सेक्टर का। सरकार ने विदेशों से सस्ते स्टील इंपोर्ट पर लगाम लगाने के लिए 57% तक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। ये ड्यूटी यूरोपियन यूनियन सहित 5 देशों पर लगी है। सबसे ज्यादा करीब 57% ड्यूटी चीन से होने वाले इंपोर्ट पर लगाई जाएगी। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के जॉइंट एमडी और ग्रुप सीएफओ शेषागिरी राव। नमस्ते मिस्टर राव, स्वागत है आपका। अच्छी खबर है स्टील इंडस्ट्री के लिए। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो सरकार ने लगाई है जिसका रेंज बहुत बड़ा है, 5% से 57% तक की ये ड्यूटी लगाई गई है। अच्छी खबर है। आप इसे कैसे देख रहे हैं अपने सेक्टर के लिए? Definitely it is a welcome step. Government of India has increased the tariffs and also introduced safeguard duty and also now introduced anti-dumping duty on certain stainless steel products. But what is essential, instead of all these steps, the imports into India have not reduced. It has grown by 34%. And if I look at the countries which are exporting are the export dependent countries like China, Japan, Korea and Russia. If you look at Japan, their imports into India grew by 67%, and South Korea it is 69%, and China on a larger base it is 10%, in the very high percentage from Russia. So overall imports are growing. So the steps taken by the government of India has not given any relief to the steel sector so far. The main reason here is the FTAs which are there, they are misused, number one. Number two is the duties or steps which the government of India is taking, they are not introduced on the entire supply chain, only on certain grades. So there is a circumvention which is happening to put the imports into India, saying, misclassifying the grades as alloy steel when there are structural steel. Similarly, cold roll coils are coming into India at lower than HR coil prices. So that way there is a huge amount of circumvention which is happening. That is why the steel industry is requesting the government of India, these steps are not adequate. As the exports are coming at any price, in order to maintain the social stability in those countries like China, Korea and Japan, and they are dumping steel into India. So government of India should look at certain other steps across the supply chain which can give relief to the steel sector. तो मिस्टर राव, आपको लग रहा है जो कदम उठाए गए हैं उससे ज्यादा और भी किए जाने की जरूरत है, तो और क्या कर सकती है सरकार? क्या मांग है स्टील इंडस्ट्री की? अगर आपको लग रहा है ये एंटी डंपिंग ड्यूटी काफी नहीं है, तो क्या करे सरकार? और So the processes which we have like anti-dumping or safeguard duties or countervailing duties, they are very process oriented and time consuming. So it takes a very long time. Compare it to other developed countries like US or Europe, they are able to take these steps at a very quite faster pace, whereas India is taking a very long time. That is why we are requesting the government of India that if they can introduce this floor price mechanism on the entire supply chain, that can give relief to the sector. That is what we are requesting the government of India to do that, in addition to introduction of quality order and other non-tariff barriers which the industry has been suggesting. रॉ मटेरियल का कॉस्ट मिस्टर राव कितनी बड़ी चिंता है अभी आपकी इंडस्ट्री के लिए? It is also very, very disappointing because if you look at in the last 2 months, the iron ore prices internationally has come down from $55 to $38 per ton, which is 30% reduction. Whereas NMDC, which is a major producer of iron ore in India, has increased the fine prices from 1460 to 1560 rupees, 100 rupees more. So it increased the price by 7%. When international prices went down by 30%, domestic prices are increased by 7%. So the disadvantage the steel sector in India is having is 37%. So raw material prices are not coming down in line with the fall in the steel prices. That is putting a lot of pressure on the steel sector.
At the same time, the logistics cost, which is very, very crucial for the steel sector, our railway freight in the last 2 years' time have gone up by 24%, either in the form of freight increases or in the form of port congestion charges or some other changes which they have done in the tariffs. So the logistics cost went up for movement through railways. Whereas internationally, petrol prices, diesel prices, crude prices, everything have come down. So steel industry is burdened with very high capital servicing cost, high logistics cost, high raw material cost, which are not falling in line with the fall in international commodity prices. That is also one of the key concern of the steel sector. जी, तो इतने सारे कंसर्न्स के बीच में मिस्टर राव, मैं आपसे एक कंपनी स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके प्रोडक्शन में हमने एक डिप देखा है, 24% का डिप देखा है। अब क्या FY16 के जो प्रोडक्शन टारगेट है वो JSW स्टील पूरा कर पाएगा? किस राह पर है, इस पर जरा सा हमें बताइए। We have taken 3 of our furnaces, one each in 3 locations, in Dolvi, Salem and also at Vijayanagar. So we have taken the shutdown of these 3 units for capacity enhancement. We are increasing our capacity from 14 million ton to 18 million ton. We will be ready by early January with recommissioning of these 3 furnaces. We have been giving the guidance that the Q3, that is current quarter, the production and sales volumes will be lower because of these shutdowns. Once we recommission these units, next quarter, we will be ready with 18 million ton capacity. But what we need to watch is the imports. Imports today constitute 14% of the total consumption in India. Even though we have enough capacity in India, our finished steel production came down by 0.7% in the first 8 months of the year. So our production capacities, our demand is being met by the imports, not by domestic production. This is a very key concern. So Government of India, as other countries are doing, they need to take necessary steps to stop these imports, which are coming at any price, in order to maintain the social stability in those countries, to protect their investments, to protect their jobs. So it is essential for us to protect our investments, our domestic steel industry. Therefore, the floor price or other non-tariff barriers is very much essential for the Government of India to take steps to preserve our domestic steel industry, which is quite competitive. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शेषागिरी राव JSW स्टील से हमारे साथ थे। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो सरकार ने लगाई है स्टील के बाहर से आने वाले स्टील पर, इससे जरूर राहत मिलेगी, लेकिन और भी कई कदम उठाने की जरूरत है। इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज स्टील के स्टॉक्स पर जरूर नजर डालिएगा, सभी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं और नजर डालते हैं कमोडिटी बाजारों पर रुपया नेगेटिव टेरिटरी में है, कमजोरी के साथ खुला है। लेकिन सोने पर नजर डालिए, सोने में भी आज कमजोरी हावी हो रही है। 25,611 का स्तर सोने में है। 68 रुपए की कमजोरी के साथ सोने की शुरुआत हो रही है। चांदी भी आज कमजोर शुरुआत के साथ 33,910 का स्तर, 73 रुपए की कमजोरी चांदी में देखने को मिल रही है। क्रूड भी नीचे की तरफ 2,388 के साथ 15 रुपए की कमजोरी फिलहाल यहां पर नजर आ रही है। नेचुरल गैस भी कमजोर, 129 रुपए 30 पैसे के लेवल्स के साथ नेचुरल गैस की आज बाजारों में शुरुआत हो रही है। मेटल क्षेत्र में अगर बात करें, कॉपर में मजबूती 319 रुपए 40 पैसे के साथ कॉपर की शुरुआत। निकल भी तेजी के साथ हरे निशान पर खुलते हुए आज सुबह एल्यूमिनियम में भी तेजी देखने को मिल रही है। और इसी के साथ लेड आज लाल निशान पर ओपन हो रहा है। क्योंकि हम मेटल स्पेस की बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ कमोडिटी बाजार पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं SSG फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय। गुड मॉर्निंग प्रियांक। सबसे बड़ी चिंता क्या आज भी क्रूड रहेगी? खासतौर पर ये हफ्ता रहने वाला है महा ट्रिगर का वीक, यानी अमेरिकी सेंट्रल बैंक से भी हमें संकेत मिलने वाले हैं। क्रूड में क्या स्ट्रैटेजी रखें प्रियांक? SSG फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ने वाले थे। हमारा संपर्क फिलहाल उनसे टूट गया है, लेकिन बाजार कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं। मिलीजुली शुरुआत यहां पर हुई है। हमने देखा मेटल पैक आज लाल और हरे निशान दोनों के साथ खुलते हुए कहीं पर, लेकिन कुछ एग्री पिक्स आपके सामने। सोया ऑयल में तेजी दिख रही है। क्रूड पाम ऑयल 408 रुपए 1 रुपए 60 पैसे की कमजोरी के साथ खुलते हुए। सोयाबीन में तेजी दिख रही है। एग्री कमोडिटी पर बात करने के लिए पैराग्राम कमोडिटी के बीरेन वकील हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बीरेन जी नमस्ते, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? एग्री कमोडिटी में बताइए
क्या किया जाए? आज कौन सी कमोडिटी है आपके रडार में? आज मेरे रडार में कॉटन केक था, लेकिन वो काफी गैप से खुला है, तो कॉल मेरे से मिस हो गया है। बट नेवरदलेस मैं लॉन्ग टर्म इसमें बहुत बुलिश हूँ बिकॉज ऑफ सप्लाई डेफिसिट। तो एग्रेसिव ट्रेडर अभी भी हल्के से करेक्शन पे भी बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट 2000 का या 1950 तक का आ सकता है। और बीरेन जी, कॉटन में जो है इसके अब यूनिफॉर्म एमआरपी पर सरकार सेंटर जो है वो इसे तय करने वाली है। इस खबर को आप इस सेक्टर के लिए किस तरह से देखेंगे? अभी इससे कुछ सीड विक्रेताओं को, मतलब सीड प्रोड्यूसर्स को थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। क्रॉप पे में ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं देख रहा हूँ। बट जहां तक प्राइसेस का सवाल है तो क्वालिटी कॉटन की बेहद शॉर्टेज है बाजार में। एक्सपोर्ट्स के काम काफी अच्छे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रुई, स्पेशली प्रीमियम रुई में काफी अच्छा अपसाइड आ चुका है और भी बाकी है। शुक्रिया बीरेन जी हमसे बात करने के लिए। एग्री कमोडिटी पे पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील हमारे साथ थे अपनी राय रखते हुए। लेकिन हम आपको बता दें, नॉन एग्री कमोडिटी में हमारे एक्सपर्ट एसएसजी फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय से हमारा संपर्क टूट गया था, लेकिन उनके फिक्स हमारे साथ हैं और उनकी सलाह है कि सोने में आपको करनी चाहिए खरीदारी 25,500 के स्तर पर। टारगेट 25,900 का दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 25,350 का, इसका ख्याल रखें। एसएसजी फाइनेंस के ये हमारे पिक्स थे प्रियंक उपाध्याय के। साथ ही जिंक भी आपकी स्क्रीन पर, बाय की सलाह 103 पर, लक्ष्य 105 रुपए का और स्टॉप लॉस 102 रुपए का। तो कमोडिटी बाजार के अपडेट में फिलहाल इतना ही। दिन भर हम आपको ताजा हाल कमोडिटी बाजार का देते रहेंगे। सौदा आपका में हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर होते हैं राकेश बंसल के साथ। हम हाजिर होंगे बजिंग स्टॉक्स लेकर और साथ ही आज का तत्काल ट्रेडिंग आइडिया भी। बाजार को खुले हुए 1.25 घंटे हो रहे हैं। मार्केट का जायजा लें उससे पहले आपको बता देते हैं आज बाजार के मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको हो सकती है शानदार कमाई। और आज तत्काल ट्रेडिंग आइडिया दे रहे हैं मनोज सचदेवा, हेड ऑफ रिसर्च हेम सिक्योरिटीज के। सलाह है क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर खरीदिए। क्रॉम्पटन ग्रीव्स को 188 पर, स्टॉप लॉस 183 का और टारगेट 200 रुपए का, यानी आपको ये कमाई करवा सकता है इंट्राडे में। क्रॉम्पटन ग्रीव्स को खरीद की सलाह, ये है हमारा तत्काल ट्रेडिंग आइडिया इंट्राडे के लिए। बाजार पर एक नजर डालते हैं। सुबह धीमी शुरुआत हुई थी, बाजार अब हल्के से संभलने की कोशिश कर रहे हैं। सेंसेक्स में अभी हम 25 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। निफ्टी लाल निशान से निकलकर हरे निशान की टेरिटरी में तो जरूर आ गया है। 7,610 पर निफ्टी है, लेकिन बहुत ही फ्लैट अभी कारोबार यहां पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप में भी हमने देखी थी लाल निशान में शुरुआत होते हुए, लेकिन अब संभलते हुए बाजार 37 अंकों की बढ़त के साथ मिड कैप है। बैंक निफ्टी में 27 अंकों की बढ़त अभी के मौजूदा लेवल्स पर देखी जा रही है। 16,374 पर है बैंक निफ्टी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर देखें तो बहुत स्ट्रगल करते हुए वो समय आ गया है जब एडवांसेस की तरफ ये रेशियो पहुंच गया है। 724 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 636 शेयर हैं जिनमें हम दबाव देख रहे हैं। लेकिन आज बहुत ही दबाव भरी शुरुआत हुई थी और ये हफ्ता रहने वाला है बहुत सारे ट्रिगर्स का। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फाइनली अपनी कमेंट्री लेकर आएगा, रेट हाइक को लेकर के रेट हाइक भी करेगा, इसकी नजर रहेगी बाजारों पर निफ्टी पर एक नजर डालिए। संभलते हुए सुबह से लेकर अभी तक हालात सुधरे हैं निफ्टी में। और मेरे साथ हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट आरके ग्लोबल से राकेश बंसल। राकेश जी गुड मॉर्निंग। निफ्टी में क्या करने की सलाह देंगे? ये हफ्ता जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्या करें निफ्टी में सर? हफ्ते की शुरुआत है। गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपने जैसे मेंशन करा निफ्टी में काफी इवेंट्स हैं मार्केट के अंदर। निफ्टी काफी वोलेटाइल रहेगा।
मेरा ऐसा मानना है लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए प्रियंका। 7700 का जो ऊपर में स्तर है वो काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी 7700 के ऊपर निकलेगा तभी एक बड़ी रैली संभव है। एल्स हम देखें तो नीचे में 7540 से लेकर 7535 एक इमीडिएट सपोर्ट है और इन्हीं स्तरों से निफ्टी ने सितंबर में एक रिबाउंड दिखाया था। अगर 7535 के लेवल्स नीचे में टूटते हैं तब एक अनदर 100 टू 150 पॉइंट्स की डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। एल्स मार्केट अभी रेंज बाउंड है, उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। 7700 के ऊपर निकले तब अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। अगर किसी को नए शॉर्ट्स इनिशिएट करने हैं तो नए शॉर्ट 7535 के नीचे इनिशिएट करने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द टाइम बिंग हो सकता है निफ्टी यहां कंसोलिडेट करे, इस रेंज में ट्रेड करे और जिधर भी एक बड़ा ब्रेकआउट हो, अगर 7700 के ऊपर निकलता है तब तेजी खेलनी चाहिए, 7535 के नीचे निकलता है तब बिकवाली करनी चाहिए। एंड एल्स ऑल्सो प्रियंका, जब तक निफ्टी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तब भी जो निफ्टी का बायस है वो नेगेटिव ही रहेगा। ओके, सो 7700 का एक आप ट्रिगर देख रहे हैं बाजारों के लिए और 7535 के नीचे बिक्री करने की सलाह दे रहे हैं राकेश जी, पर हम इनकी स्टॉक स्पेसिफिक सलाह भी आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल कुछ स्टॉक्स जो बाजार में धमाल मचा रहे हैं, या तो गिरे हुए हैं या कुछ ज्यादा अनयूजुअली चढ़े हुए हैं, इसीलिए हम ये रखते हैं आपके सामने। टाटा मोटर्स, M&M, इन दोनों में ही आज सुबह से ही हम लगातार दबाव देख रहे हैं। वजह है कि जिस तरह से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने डीजल व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन पर मनाही रखी है, दिल्ली में इसकी नेक्स्ट हियरिंग तक इन पे दबाव बना रहेगा। क्लीन इंडिया और ONGC क्रूड में आए दबाव को झेलते हुए आज लाल निशान के साथ खुले हैं। दबाव यहां पर जोरदार है, पर इन सब में BS लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है, इस पर जरूर नजर डालिएगा। ऑलमोस्ट 1.5% की उछाल पर कारोबार कर, माफ कीजिएगा 1.5% तो 1.5 अंकों से ज्यादा मजबूत है, 5% से ज्यादा की मजबूती BS लिमिटेड में देखने को मिल रही है। ओरिएंट पेपर में भी आज तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। कावेरी सीड और मोन्सैंटो मिले जुले हैं क्योंकि सरकार अब BT कॉटन की कीमत तय करेगी, इसको लेकर के कावेरी सीड में हम पॉजिटिव रुझान देख रहे हैं। लेकिन ओरिएंट ग्रीन एक शेयर है, ये भी आज हरे निशान पर है। जिस तरह से पेरिस में क्लाइमेट चेंज को लेकर के बातें की गई हैं और अब इनका असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चीजें बनाती है, उसमें ओरिएंट ग्रीन पावर एक नाम है और इसको फायदा हो सकता है क्लीन एनर्जी पर अगर सरकार कुछ कदम उठाती है। कावेरी सीड, मोन्सैंटो, कावेरी हरे निशान में तो मोन्सैंटो लाल निशान में। सरकार अब तय करेगी किस तरह के कॉटन पर क्या करना होगा, कॉटन की कीमतें केंद्र तय करेगी और इसके बाद हम देखेंगे इनमें हरकत। और स्टील के स्टॉक्स आज हरे निशान में है क्योंकि सभी खुश हैं एंटी डंपिंग को लेकर सरकार ने जो कदम उठाए। तो ये कुछ बजिंग स्टॉक्स हैं, इन पर हम राय लेंगे अपने मार्केट एक्सपर्ट की। लेकिन राकेश जी, इन बजिंग स्टॉक्स में आपको कोई पसंद आ रहा है या आपकी कोई दो पुट आज के बाजार में? प्रियंका, जिन स्टॉक्स के ऐसे बजिंग स्टॉक्स में जो नाम लिए हैं, डेफिनेटली महिंद्रा एंड टाटा मोटर एक इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं, पर दोनों के अंदर हम देखें तो एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। और इनफैक्ट अगर आप टाटा मोटर में देखें तो वायदा बाजार के अंदर ओपन इंटरेस्ट में भी काफी इजाफा हुआ है, प्राइस गिरा है, डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हुई हैं। बट मेरा ऐसा मानना है अभी वेट करना चाहिए क्लोजिंग का कोई नई पोजीशन लेने के लिए टाटा मोटर्स या महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर। अगर एज ऑफ नाउ मार्केट्स में कोई पोजीशन लेनी है तो मेरा ऐसा मानना है स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। एक कॉल तो रहेगा अपोलो हॉस्पिटल पर, एक डिफेंसिव प्ले है, काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से अपोलो हॉस्पिटल का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, गिरते बाजार में भी एक निवेशक को अच्छी रिटर्न दे सकता है। 1339 के स्टॉप लॉस के साथ अपोलो हॉस्पिटल खरीदने की राय रहेगी 1467 के टारगेट के लिए। एंड जिस तरीके से प्रियंका आप स्टील की बात कर रहे थे, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है कल्याणी स्टील का। आज स्टॉक कम वॉल्यूम्स पे करेक्शन दिखा रहा है, 2% के लगभग डाउन है। मेरा ऐसा मानना है गिरावट पे कल्याणी स्टील को खरीदना चाहिए 152.90 के स्टॉप लॉस के साथ और इस स्टॉक का पोटेंशियल है 178, 179 के लेवल्स ऊपर में दिखा सकता है। तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर करेंगे बात आगे भी। राकेश बंसल जी मेरे साथ बने हुए अपने पिक्स दे चुके हैं, लेकिन इनसे पूछने वाले हम कि आपके जो शेयर हैं उन्हें आपको क्या करना चाहिए, किन लेवल्स पर करें खरीदारी, राकेश जी बताएंगे। फिलहाल अभी हाजिर हो रहे एक छोटा सा ब्रेक लेकर। बाजारों को हम संभलते हुए देख रहे हैं। एक गैप डाउन ओपनिंग देखी थी बाजारों में, लेकिन अब
सेंसेक्स और निफ्टी उन लेवल से ऊपर आते हुए हरे निशान पर पहुंच गए हैं। सेंसेक्स में 54 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। 25,102 का लेवल सेंसेक्स में हम देख रहे हैं। निफ्टी 7,638 पर है। 28 अंकों की मजबूती है। मिड कैप भी मजबूती के साथ 58 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी करीब 73 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। और अब हम बहुत इजीली कह सकते हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो में अब हम कंफर्टेबली एडवांसेस की तरफ हैं, यानी ज्यादा शेयर्स हैं जो बढ़ रहे हैं। 804 शेयर है जो बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले करीब 560 शेयर हैं जो कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और आज बाजार में जहां एक्शन दिख रहा है उसमें से एक है ऑयल से जुड़े स्टॉक्स, जहां एक्शन हम देख रहे हैं क्योंकि क्रूड की कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2016 और भी खराब रहेगा। हम क्रूड को और भी नीचे आते हुए देखेंगे। ऐसे में केन इंडिया और ओएनजीसी आज दोनों ने ही दबाव के साथ शुरुआत की है और ये दबाव अभी भी बढ़ा हुआ है। केन इंडिया ऑलमोस्ट 2% की दबाव को छूने वाला है। ओएनजीसी में 0.5% से ज्यादा की दबाव है। राकेश बंसल मेरे साथ बने हुए। राकेश जी, केन इंडिया और ओएनजीसी और तमाम ऑयल से जुड़े स्टॉक्स में आप अभी क्या कॉल दे रहे हैं? अगर आप ऑयल से जुड़े स्टॉक्स की बात करते हैं जैसे केन इंडिया, ओएनजीसी, तो काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। केन इंडिया में तो उछाल पे बिकवाली की राय रहेगी। अगर आप देखें तो ये स्टॉक जिन स्तरों पे इसका पब्लिक इशू आया था उसके भी नीचे आ चुका है और अब एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट स्टॉक का 110, 112 के अराउंड आता है। और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है 110, 112 के स्तर भी स्टॉक टेस्ट कर सकता है। मेरा ऐसा मानना है केन इंडिया में किसी तरह की बॉटम फिशिंग से बचना चाहिए, उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। एंड इनफैक्ट अगर आप देखें तो ओएनजीसी के अंदर भी एक काफी बड़ा नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो रहा है 223 के नीचे, और इसमें भी बिल्कुल किसी तरह की बॉटम फिशिंग से बचना चाहिए। जिस तरीके से इसमें टेक्निकल स्ट्रक्चर है प्रियंका, इसके अंदर अगर आप टेक्निकली देखें तो 185, 186 से पहले कोई नियर टर्म सपोर्ट नहीं आता है मौजूदा स्तरों से। इसके अंदर भी एक अच्छी गिरावट मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकती है। उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए, किसी तरह की बॉटम फिशिंग से इन स्टॉक्स के अंदर बचना चाहिए। इस स्पेस में अगर आप प्रियंका देखें तो सिर्फ एकमात्र स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जिसने निचले स्तरों पे देखें तो 910, 912 के अराउंड एक डबल बॉटम लगाया है। और इस स्टॉक में अगर किसी स्टॉक का अगर प्रॉमिसिंग स्ट्रक्चर है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो ये है ऑल सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में राकेश जी की सलाह, लेकिन इन्होंने रिलायंस का जिक्र किया और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जो चैनल देख रहे हैं वो टीवी 18 का हिस्सा है और टीवी 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में जुड़ेंगे हेमंत घई और आपको बताएंगे अपने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ कि क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। वापस आइए। शुरुआती झटके के बाद संभले बाजार, निचले स्तरों से सेंसेक्स 250 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी भी 7,650 के करीब 67 का स्तर तोड़ने के बाद रुपए में अच्छी रिकवरी, डॉलर के मुकाबले निचले स्तरों से 12 पैसे की मजबूती। दिसंबर तिमाही में टीसीएस के कमजोर नतीजों की आशंका, चेन्नई में बाढ़ से काम पर होगा असर, शेयर में करीब 1% की गिरावट। 6 देशों से होने वाले कोल्ड रोल स्टील इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी से कंपनियों को राहत, जिंदल स्टेनलेस का शेयर 6% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील भी 3% चढ़ा। जीएसटी पर मतभेद दूर करने के लिए कांग्रेस नेताओं से आज मिलेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में जीएसटी रेट शामिल करने पर सहमति बनाने की होगी कोशिश। नमस्कार, मैं हूं हेमंत घई और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। जी हां, अगले आधे घंटे तक हमारे 2 एक्सपर्ट आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। हमारा हेल्पलाइन नंबर नोट करिए और यहां पर आप फोन करिए। 1800-209-7890 है हमारा हेल्पलाइन नंबर। और राकेश बंसल हमारे साथ बने हुए हैं एफएनओ स्ट्रेटजी पर राय देने के लिए। हमारे साथ अब इंडिया इन्फोलाइन के नवनीत डागा भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। और बाजार पर अगर आप नजर डालें
तो बेहतरीन रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह से संकेत दे रहा था कि कमजोर शुरुआत होगी, देखिए कमजोरी के साथ खुले तो जरूर, और हमने जो एक लो भी लगाया 7550 के करीब का, उसके बाद से देखिए एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। जीएसटी को लेकर होप्स हैं और वापस से आप देखिए 52 हफ्ते के निचले स्तर के पास जाने की कोशिश कर रहा था बाजार, लेकिन वो आज टूटा नहीं। 7540 है वो स्तर, उससे पहले से ही देखिए एक रिकवरी देखने को मिल रही है। इसी रिकवरी को और प्ले करेंगे या फिर आपको लगता है उछाल में बिकवाली करनी चाहिए? नवनीत डागा से पूछ लेते हैं। नवनीत जी, स्वागत है आपका, बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस बाजार को आप? वेल, इंटरेस्टिंगली मार्केट्स काफी ओवरसोल्ड है। इफ अगर निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो अराउंड 32 के आरएसआई के आसपास में, और डेरिवेटिव डेटा पॉइंट्स देखेंगे तो 7500 पुट्स पे अभी भी काफी मैक्सिमम बिल्डअप है, और वो बिल्डअप अभी और स्ट्रांग हुआ है आज की रिकवरी के बाद में। तो फिलहाल एक रेंज एक राइज आना चाहिए मार्केट में, पर 7710 7700 के नियर अबाउट ये रेजिस्टेंस निफ्टी फ्यूचर्स पे दिखने लगेगा, और वहां पे एक उछाल पे बिकवाली करने की सलाह दूंगा। वहां पे 7680 7700 के रेंज पे निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करना चाहिए, और अपसाइड पे 7750 का एक स्टॉप लॉस लगा के नीचे में डाउनसाइड टारगेट अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग निफ्टी का जो लोअर लो बॉटम है समवेयर नियर टू 7550, वहां पे वापस निफ्टी वापस मूव आता हुआ दिखेगा। चलिए, तो उछाल में बिकवाली करें 7710 के आसपास, 7680 के आसपास उछाल में बिकवाली करनी चाहिए। नवनीत, बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए इस समय? इंटरेस्टिंगली बैंक्स जब से बैंक निफ्टी ने 16,800 का लेवल तोड़ा है, और इंटरेस्टिंगली कुछ स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी में बहुत हैवी वेट्स है, लाइक एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, इन्हीं तीनों के चार्ट्स काफी डेंट हो चुके हैं अभी, और ऑलरेडी ये बैंक निफ्टी पे तो यह रणनीति रहेगी कि उछाल पे बिकवाली करे। 16,400 अभी 16,450 अभी काफी अच्छा एक उछाल देखने को मिला है। समवेयर नियर टू 16,600 का एक स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी पे फ्रेश यहाँ पे शॉर्ट्स इनिशिएट करना चाहिए। लोअर एंड पे वी आर एक्सपेक्टिंग एज लो एज 16,000, एंड जो सितंबर लो देखने को मिला था 15,800 का टारगेट्स लोअर एंड पे नेक्स्ट एक हफ्ते के अंदर में। ओके, चलिए, तो ये ट्राई, लेकिन आप इस समय अगर बाजार पर नजर डालें तो केवल एक ही सेक्टर है जो लाल निशान में है, वो है वो है निफ्टी ऑटो। आप देखिए 0.5% नीचे है ये सूचकांक। एनजीटी ने जिस तरह से अब रोक लगाई है दिल्ली में डीजल की कारों की बिक्री के और रजिस्ट्रेशन के ऊपर, आप देखिए ये सेक्टर आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है। शुक्रवार को भी हमने यहाँ पर गिरावट देखी थी, और फार्मा स्टॉक्स में जमकर तेजी हो रही है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स देखिए बेहतरीन तेजी दिखा रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स 0.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पॉजिटिव है, एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब करीब 2 बढ़ने वाले शेयर। राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। राकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने एलएनटी का दिसंबर फ्यूचर लिया है, 3 लाट है, और 1362 पे लिया है, और एक एमएम लिया 1362, हाँ जी, और एक एमएम लिया है 2 लाट जनवरी का है, वो 1333 में लिए हैं। तो क्या मैं बना रहा हूँ या क्या मेरे लिए क्या एडवाइस है? चलिए पहले एलएनटी का भाव देखते हैं इस समय क्या ट्रेड कर रहा है। हमने देखा था एलएनटी में भी काफी दबाव देखने को मिला था, और 1362 रुपए की इनकी खरीद है, 1294 रुपए का भाव है। हर रोज 52 हफ्ते के निचले स्तरों को ये छू रहा है। ये बताइए नवनीत, क्या लगता है इस सीरीज में इनका भाव आ सकता है या चांसेस कम लग रहे हैं? बहुत ही ग्रिम चांसेस है। देखिए एलएनटी ऑलमोस्ट अगर चार्ट्स पे देखेंगे तो 1.5 साल का जो ब्रेकडाउन लेवल था 1400 के लेवल्स पे था, और नीचे में प्रोजेक्शन अगर मैं देखूंगा तो अराउंड 1600 से 1400 कम से कम 200 पॉइंट की वहां से मंदी आनी चाहिए। तो समवेयर नियर टू 1250 से 1220 के लेवल्स के नियर अबाउट एलएनटी जाके स्टेबलाइज होएगा। तो हर राइस पे एक एलएनटी पे सेल पोजीशंस बनेगी, और इनको अभी भी इस लेवल्स पे समवेयर नियर टू 1300 के लेवल्स के आसपास में इनको बेटर इसकी इसको एग्जिट कर दे और कोई दूसरे स्टॉक में शिफ्ट हो जाए। और एमएनएम 1330 पर इन्होंने खरीदा। आज के मजबूत बाजार में भी देखिए ये शेयर कमजोर है। एनजीटी के ऑर्डर का इंपैक्ट साफ तौर पर नजर आ रहा है, और सबसे ज्यादा कह रहे हैं प्रभावित होने वाला कंपनी एमएनएम ही है। सारे के सारे देखिए इनका पोर्टफोलियो डीजल गाड़ियों का ही है। आज करीब 2% कमजोर है। क्या राय रखते हैं आप यहाँ पर, और क्या स्टॉप लॉस इनको फॉलो करना चाहिए? देखिए एमएनएम फ्रेश वीकनेस देखने को मिली है लास्ट कपल ऑफ डेज में। 1300 के लेवल्स में ऑलमोस्ट वहां से स्टॉक में फिसला है, और वापस 1250 के आसपास में आके आज एडजस्ट हुआ है। अभी भी फ्रेश शॉर्ट्स देखने को मिल रहे हैं करंटली ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ। आज भी आप देखेंगे तो फ्यूचर्स में शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है।
अभी भी दिख रहा है कि इस स्टॉक के अंदर में और वीकनेस आ सकती है, बट मैं ये बोलूंगा कि क्लोजिंग बेसिस पे 1240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर 1240 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर आज स्टॉक फिसल जाता है तो इसके अंदर में बेटर इज टू एग्जिट द स्टॉक। नीचे में ऑलमोस्ट 1200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा है M&M पर। और अब हमारे साथ बिहार से जन्मेजय जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? सर, ये टाटा मोटर हमने 390 का शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, इसमें क्या करना चाहिए अभी, और मतलब इसको कवर कर ले कि बने रहे? टाटा मोटर आपने शॉर्ट किया है 390 पर और आज जो भाव है वो 371 का है, 2% नीचे है। राकेश जी देखिए, सब लोग ऑटो शेयरों में ही इस समय पोजीशंस बना रहे हैं, टाटा मोटर्स पर मुनाफा हो रहा है, इन्हें क्या सलाह देंगे? हेमंत जी, मैंने राय दूंगा कि मुनाफे को बांध लेना चाहिए। अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। अगर आप देखें तो 358, 360 के अराउंड टाटा मोटर्स का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और स्टॉक ने लगभग 360 रुपए से एक रिबाउंड भी दिखाया है। और जब आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है, जब भी 3-4% स्टॉक एक मूव ले लेता है आपके डायरेक्शन में, तो मुनाफे को बांधना चाहिए। डेफिनेटली इन स्तरों पे मुनाफा बांध के टाटा मोटर की सेल साइड की पोजीशन से बाहर आना चाहिए। चलिए, बधाई हो, आपको मुनाफा हो रहा है और इस मुनाफे को तुरंत बुक करिए। आज मजबूत वाले बाजार में यही सेक्टर थोड़ा कमजोर है, तो देखना होगा, ये कमजोरी रहती है लेकिन या नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। विपुल जी ने सूरत से हमें फोन किया है। इसी बीच बताइए विपुल जी, आपका पास भी अशोक लेलैंड है। आज सारे ही दर्शक देखिए ऑटो शेयरों पर पोजीशंस बना रहे हैं, बताइए। सर, अशोक लेलैंड मैंने 86 में बाई किया है, अभी 87.35 चल रहा है जी। मुझे 2 लॉट बाई करने थे, तो क्या मैं और एक लॉट यहाँ से बाई कर सकता हूँ? खबरें तो थोड़ी खराब हैं सब ऑटो कंपनियों के लिए। आप खरीदारी करना चाह रहे हैं, बल्कि आपने खरीदारी करी है 86 की के भाव पर। हाँ। और भाव है 87.35 का, तो आपको थोड़ा सा मुनाफा इस समय इस पोजीशन पर हो रहा है। हाँ, चलिए, मुझे 2 पोजीशन खड़ी करनी थी, तो 90 तक का टारगेट में रख सकता हूँ इसमें? बताइए नवनीत जी, 90 रुपए का लेवल रखना सही होगा? बेटर इज इसकी चार्ट को अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल था, इसने जो ब्रीच किया है वो समवेयर नियर टू 87, 89, 20, 25 का था। अभी ये स्टॉक समवेयर नियर टू 89 के आसपास में आके एक अपर रेजिस्टेंस लेने लगेगा। नियर टू दैट लेवल आपको बेटर इसकी आप उसमें एग्जिट कर दें और वापस इसको री एंट्री पॉइंट समवेयर नियर टू 85 लेवल्स के अंदर में वापस री एंट्री कर सकते हैं। बट 90 रुपए के लिए स्ट्रेच करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 89.20, 89.30 के नियर अबाउट इसको निकाल दे और पुनः मुनाफा बुक करें। और इस पोजीशन पर स्टॉप लॉस कहाँ रखें? 86 के भाव पर उन्होंने खरीदा, अभी ₹1.25 रुपए ऊपर है। एग्जैक्टली सेम एट कॉस्ट पे 86 पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर स्टॉक उसके नीचे अगर वापस ट्रेड करता है तो फ्रेश लो समवेयर नियर टू 84 के आसपास में भी आ सकता है। चलिए, इंद्रप्रीत सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अब सिंह साहब नमस्कार, बताइए कहाँ से फोन कर रहे हैं आप? नमस्कार सर, मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ। नमस्कार, बताइए। जी सर, मेरे पास अपोलो टायर है, 140 का पुट लिया हुआ है मैंने, और 2 लॉट है मेरे पास, ₹2.35 पे लिया हुआ मैंने। ओके, ₹2.35 पर आपने 140 का पुट खरीदा था, यानी आपको लग रहा था कि यहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा। 140 का पुट अब दरअसल ₹1.95 का हो गया है। आपके भाव से ये नीचे ट्रेड कर रहा है। पूछते हैं नवनीत जी, बताइए इनकी पैसे की रिकवरी होती हुई दिख रही है आपको? देखिए, अपोलो टायर्स ने एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है 160 के लेवल्स के नीचे, और ये फ्रेश वीकनेस अभी भी कंटिन्यूड है। हो सकता है कि एक टेक्निकल बाउंस ओवरऑल मार्केट के अंदर में आया है, तो थोड़ा टेक्निकल बाउंस है, बट द चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी काफी वीक है। जस्ट बिकॉज इन्होंने पुट लिया है, वो पुट है भी थोड़ा एक्सपेंसिव। अगर अपन ऑप्शंस का डेटा देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 40-42 के आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटीज पे पुट चल रहा है। तो इवन वी बिलीव कि स्टॉक में मोमेंटम डाउन साइड पे रहना चाहिए। समवेयर नियर टू 144 के लेवल्स पे फ्यूचर आना चाहिए। उस लेवल के हिसाब से अराउंड 3.5 से 4 रुपए के एग्जिट प्राइस मिल सकता है इनको पुट के लेवल्स पे। तो एक ये अभी भी होल्ड कर सकते हैं और नियर टू 4 रुपीज के आसपास में ये पुट के प्राइस पे एग्जिट मिल सकता है इनको। ओके, चलिए लेते हैं इस नोट पर एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाते आते बाजार पर वापस नजर डालिए। जो थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही थी वो अब थोड़ी थमती हुई दिख रही है। 13 अंक ऊपर, लेकिन अभी भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 20 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में देखने को आपको मिलेगी और बैंक निफ्टी ऊपर से थोड़ा सा हल्के होता हुआ आपको नजर आएगा। यही दरअसल बाजार की कमजोरी या फिर कहें जो तेजी है उसके ऊपर ब्रेक लगा रहा है। थोड़ा ज्यादा अच्छा मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था बैंक निफ्टी 15-20 मिनटों पहले, और अब ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे आता हुआ। ब्रेक के बाद भी आपके सवालों के जवाब देंगे। नवनीत डागा हमारे साथ बने हुए हैं और ये भी जानेंगे राकेश से कि इस समय कौन से स्टॉक्स उन्हें पसंद है जहां पर वो तेजी करना चाह रहे हैं या फिर मंदी की पोजीशंस बनाना चाहते हैं।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन आप देखिए कोई रनअवे रैली भारतीय बाजारों में नहीं है। ऑटो सेक्टर अभी भी लाल निशान में है और अब PSU बैंक्स, ये वो पॉकेट है जो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। तो अब ये दूसरा सेक्टर जो हरे निशान में थोड़ी देर पहले था, 15-20 मिनट पहले, लेकिन अब आप देखिए ये लाल निशान में आता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसे बाजार में ऑप्शंस में किस तरह से आपको कमाई के बेहतरीन मौके हैं, चलिए जानते हैं। हमारे साथ नवनीत बने हुए हैं। नवनीत बताइए, कहां पर आपको लग रहा है कि कमाई हो सकती है आज के दिन? एक स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी के अंदर में समझ में आ रही है, जस्ट बिकॉज ये फेड का इवेंट है नेक्स्ट 2 दिन के बाद में काफी हद तक मार्केट्स वॉलेटाइल रहेगा और डाउनसाइड बायस रहना चाहिए मार्केट में कंटिन्यूस। और जैसे हमने बात की बैंक निफ्टी में हर उछाल पे बिकवाली देखने को मिल सकती है, उसी हिसाब से एक रणनीति तैयार की है जिसके अंदर में आप बैंक निफ्टी के अंदर में 16,500 का पुट बाय कर सकते हैं और सामने 2 लॉट्स 16,000 के पुट सेल कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये स्प्रेड ऑलमोस्ट 0 पॉइंट्स के रेशियो पे मिल रहा है, जिसके अंदर में 16,500 का पुट बाय करेंगे तो 350 रुपए देने पड़ेंगे और सामने 16,000 का पुट बैंक निफ्टी पे सेल दो लॉट सेल करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 175 पॉइंट्स इनफ्लो मिलेगा। तो ऑलमोस्ट एट 0 कॉस्ट पे इनफ्लो पे हो रहा है। वी बिलीव कि अगर बैंक निफ्टी 16,000 के नियर अबाउट मूव करता है तो स्प्रेड के अंदर में काफी अच्छा इनफ्लो देखने को मिल सकता है। बल्कि ऊपर में अपसाइड पे 16,500 के ऊपर बैंक निफ्टी कहीं पे भी एक्सपायर होता है तो इस ऑप्शन स्ट्रैटेजी में कहीं पे कुछ रुपए नहीं लगेंगे और ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाएगा और नीचे में डाउन साइड पे एज लो एज 15,500 के बाद में ब्रेक इवन चालू होता है। तो ये रणनीति अगर डाउन साइड बायस है मार्केट में और उसका फायदा उठाना है तो नेक्स्ट कपल ऑफ दिन में काफी काम आ सकती है। इसके अलावा बैंक PSU बैंक्स देखिए जिस तरह से कमजोर हो रहे हैं। आज RBI की बैठक है, 20 PSU बैंक्स के चीफ के साथ यानी अध्यक्ष के साथ, और स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर RBI क्या कहती है इसके ऊपर नजर रहेगी। तो PSU बैंक्स पर खास तौर पर नजर बनाकर रखिएगा। लेकिन नवनीत, आप कह रहे हैं कि भारती एयरटेल और टाटा स्टील में बिकवाली के मौके आपको दिख रहे हैं। ये 2 स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, क्या भारत फोर्ज माफ कीजिएगा और टाटा स्टील आप कह रहे हैं बिकवाली के मौके दिख रहे हैं। क्या टारगेट्स हैं जिसके लिए अप्रोच करना चाहिए? देखिए, भारत फॉग एक स्टॉक है जिसके अंदर में कंटिन्यूस वीकनेस देखने को मिला है। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट्स पे ही बिल्ड होते हुए नजर आ रहा है। वी हैव सीन ऑटो एंसिलरी ओवरऑल एज एन पैक, मदरसन सुमी, आयशर मोटर्स, ओवरऑल सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स हैव बीन वीकनेस में ट्रेड कर रहे हैं। भारत फॉग इसके अंदर में फ्रेश वीकनेस देखने को मिला है। 800 के नीचे काफी हद तक सस्टेन कर रहा है। अभी 888, 788 के नीचे 788 का रेंज है, यहाँ पे एक इनिशिएट कर सकते हैं शॉर्ट्स पे और ऊपर में एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 805 का। नीचे के अंदर में टारगेट्स इमीडिएट लेवल्स पे 760 से 750 का 2 टारगेट्स समझ में आते हैं जो नेक्स्ट एक वीक के अंदर में अचीव हो सकते हैं। यूपीएल पे आपकी तेजी की राय है, वो आपसे जानेंगे। लेकिन राकेश, ये बताइए आपको कौन से स्टॉक्स इस समय अट्रैक्टिव लग रहे हैं, कहां पर सौदा आप करना चाहेंगे? देखिए हेमंत जी, एक स्टॉक कैश के अंदर कल्याणी स्टील काफी अच्छा लग रहा है और जिस तरीके से स्टील में न्यूज है, मेरे को लगता है कल्याणी स्टील का मेरे को ऐसा लगता है सबसे बेस्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर है। एक अच्छी रैली टूवर्ड्स 177, 178 कल्याणी स्टील में देखने को मिल सकती है। 152.90 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एक डिफेंसिव काउंटर अपोलो हॉस्पिटल काफी अच्छा लग रहा है। आप देखें तो काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है अपोलो हॉस्पिटल का। 1339 के स्टॉप लॉस के साथ अपोलो हॉस्पिटल को खरीदना चाहिए 1467 के टारगेट के लिए। एंड एक वायदा बाजार में अगर शॉर्टिंग करनी है तो अपोलो टायर, जैसे अभी नवनीत ने भी मेंशन किया था, काफी बड़ा क्रैक देखने को मिला है। अपोलो टायर को बेचने की राय रहेगी 153.50 के स्टॉप लॉस के साथ 135 के टारगेट के लिए। चलिए, तो अपोलो टायर में बिकवाली करिए, कल्याणी स्टील में तेजी करने की राय। लेकिन यूपीएल, नवनीत बताइए, यहां पर तेजी करनी चाहिए? देखिए, दिस स्टॉक पे काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 500 लेवल से स्ट्रेट अवे करेक्शन फ्रॉम द लास्ट डे, 1-1.5 महीने के अंदर में। अगर इसका ट्रेंड लाइन देखेंगे तो लास्ट सितंबर 2014 के अंदर में एक पीक हाई देखा था 390 का। ऑलमोस्ट 390 पे डबल सपोर्ट देखने को मिला है। लास्ट कपल ऑफ डे से 390 के आसपास पे आके स्टॉक में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर में एक चांस है जहां पे ओवरऑल लॉन्गर ट्रेंड स्टिल अभी इंटैक्ट है अपसाइड पे। एक नीचे में मीडियम टर्म ट्रेंड जहां पे ब्रेक हुआ है वहां पे सपोर्ट है 390 पे। तो 390 के नियर अबाउट इसके अंदर में एंट्री लीजिए और नीचे में डाउनसाइड स्टॉप लॉस 380 का मेंटेन करके अपसाइड वी आर लुकिंग एट समवेयर नियर टू 410 के आसपास में इसके अंदर में एक एग्जिट मिल सकता है। ओके, चलिए, तो ये तमाम कमाई के मौके हैं जिन पर आपको आज एक्ट करना चाहिए, आपको अच्छा फायदा होगा। इसी बीच अब हमारे साथ सिलवासा से ध्रुव कुमार दास जुड़ चुके हैं। ध्रुव साहब नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैंने एक लॉट अंबुजा सीमेंट में ले रखी है फ्यूचर में 197.95 पे। कब खरीदा आपने? सर पिछले वीक ही खरीदा था।
पिछले वीक आपने खरीदा था अंबुजा सीमेंट, देखते हैं इस समय भाव क्या चल रहा है। 197.95 आपने खरीदा था, भाव लाएंगे और देखेंगे 192.75 का भाव इस समय चल रहा है। हालांकि आज थोड़ी मजबूती दिखा रहे हैं सीमेंट कंपनियां, लेकिन इनके भाव से नीचे है। ये बताइए नवनीत, क्या राय होगी? इन्होंने सेक्टर अच्छा चूज किया है। सीमेंट के अंदर में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक्स है लाइक अल्ट्रा सीमेंट, ग्रासियम, जहां पे थोड़ा ज्यादा कन्विक्शन लग रहा है ट्रेड लॉन्ग साइड पे लेने के लिए। अंबुजा सीमेंट जस्ट बिकॉज ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इट इज ब्रोकन, मैं अभी ये सलाह दूंगा थोड़े से अपसाइड के अंदर में, इसके अंदर में समवे नियर टू 194-9450 के आसपास में इनको एग्जिट मिलता है तो निकल के साइड हो जाना चाहिए। बाकी अगर सीमेंट में ही अगर दाव लगाना है तो सबसे बेस्ट इज अल्ट्राटेक, ग्रासिम। ओके, चलिए सीमेंट में ही दाव लगाना है तो अल्ट्राटेक और ग्रासिम बेहतरीन शेयर हैं। हमारे साथ अब मोहम्मद जामील चूरू से जुड़ चुके हैं। जमील साहब नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, फर्स्ट क्लास सर। सर मेरा डीएलएफ पे सवाल है, मैं डीएलएफ का फ्यूचर लेना चाह रहा था और एक आपसे सर आप एडवाइस है सर, ये जो आप मल्टीबैगर शेयर बताते हैं 9:05 पर, वो मार्केट खुलने के बाद बताइए सर, ये बहुत महंगा हो जाता है, हमें मिलता नहीं है, हमें फायदा नहीं मिलता इसका। और एक सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये एपीआई की रिपोर्ट आती है क्रूड के ऊपर, वो हमें कैसे पता चल सकता है कि कैसी आने वाली है, लो आने वाली है, हाई आने वाली है? एपीआई की जो यूएस की रिपोर्ट है वो तो देखिए कैसी आने वाली है, ये यहाँ पर रह के अनुमान ही लगाया जा सकता है और उसके बाद जब आ जाए तब हम आपको जरूर बताते हैं कि किस तरह की आई अपनी। सर मैं ये जानना चाहता था कि कौन सी साइट से पता चल सकती है? moneycontrol.com हमारी वेबसाइट है, हिंदी moneycontrol.com पर आप जाकर ये सारा डेटा वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये बताइए डीएलएफ जो आप खरीदना चाहते हैं वो एफएनओ में खरीदना चाहते हैं या कैश में लेना चाहते हैं? जी सर, मैं एक लॉट लेना चाह रहा था, फ्यूचर लेना चाह रहा था मैं डीएलएफ का। चलिए पूछते हैं सर, ये मेरी एक एडवाइस जरूर मानिएगा सर, ये जो 9:05 पे आप जो शेयर बताते हैं वो मार्केट खुलने के बाद बताएं सर। बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया आपने, आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए बिल्कुल, और आपने बड़े क्रिएटिव हो गए इन दिनों में, जो आपका जो बराबर का जो चैनल है उसको आपने पीछे छोड़ दिया है, बोर हो गया वो चैनल और आपका इंटरेस्टिंग हो गया। चलिए शुक्रिया इन शब्दों के लिए, हौसला अफजाई के लिए। लेकिन पहले पूछते हैं राकेश से, डीएलएफ उनको क्या चार्ट पर कन्विंसिंग ट्रेंड्स दे रहा है? क्या यहाँ पर एफएनओ में पोजीशंस बनानी चाहिए? बताइए राकेश जी। देखिए हेमंत, काफी लोग हैं डीएलएफ को खरीदना चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से इसने डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अनाउंसमेंट्स की थी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में जो इसकी न्यूज है, अगर डीएलएफ को किसी ने खरीदना है तो हेमंत जी एक ही ट्रेड बैठता है कि जो इसके ऑल टाइम लोज हैं 94 के, उसके नीचे के स्टॉप लॉस लगाए जाए। इन स्तरों पे तो नहीं, अगर स्टॉक 101, 102 के अराउंड आता है तो 94 रुपीज के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है, इनफैक्ट रोल ओवर भी किया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा है जितनी बार भी स्टॉक के अंदर नेगेटिव न्यूज आई हैं, इस स्टॉक ने नीचे में 94, 95 के लेवल्स हैं उनको नहीं तोड़ा है और इन स्तरों के आसपास देखें तो स्टॉक का एक डबल बॉटम, काफी बड़ा डबल बॉटम लगा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं, तो गिरावट में इसको खरीद सकते हैं। हेमंत जी एक चीज और, जिस तरीके से हम स्टॉक्स की बात कर रहे थे, एक और काउंटर जिसके अंदर आज एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वो है ओमेक्स ऑटो। हालांकि स्टॉक अपर सर्किट पर है, अगर मार्केट में सर्किट खुलता है और कोई निवेशक लंबी अवधि का नजरिया बना के स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो जिस तरीके से स्टॉक के अंदर आज एक फ्रीज के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, मेरे को ऐसा लगता है कि 6 से 8 महीने में स्टॉक 50% एटलीस्ट इन स्तरों से अप्रिशिएट कर सकता है। ओके, ओमेक्स ऑटो की बात कर रहे हैं आप, 10% की अपर सर्किट पर ये शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है, तो ये भी पसंद है राकेश को। इस तेजी के बाद ब्रेकआउट के साइंस वहां पर उन्हें दिख रहे हैं। एक फटाफट ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर और हमारे साथ अब दीपमाला जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, बताइए कहाँ से फोन किया आपने? मैं अहमदाबाद से बात कर रही हूँ। और क्या सवाल है मैम आपका? मेरा ये F&O के ऊपर क्वेश्चन है कि जो अभी जो क्रूड का जो रेट है वो डाउन होता जा रहा है, उसके हिसाब से ONGC का रेट काफी लो हो गया है, तो ये कब तक इसके ऊपर आने के चांसेस है? आपने 4 लॉट खरीद रखे हैं 246 रुपीज के भाव पर, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ
हाँ जी, 246 का रेट है। 246 के भाव पर आपने खरीदा था, 214 का रेट है। देखिए नवनीत, क्या करना चाहिए इनको ओएनजीसी में? आप पहली बात तो इतना फ्यूचर्स के अंदर में इतने लंबे लेवल्स के लिए होल्ड नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज प्ले विद स्टॉप लॉसेस ऑन फ्यूचर्स के लेवल्स पे। अभी ओएनजीसी पे फ्रेश ब्रेकडाउन है 220 के नीचे। ओके, सिमिलरली द वे हम लोगों ने बात किया कि क्रूड के ऊपर में काफी वीकनेस देखने को मिल रही है और ये वीकनेस आने वाले टाइम पे एक्सटेंड हो सकती है, जस्ट बिकॉज वी आर मूविंग टू एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट, फेड इवेंट के पास में जा रहे हैं, तो वहां पे एक इंटरनेशनल मार्केट्स में एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो अभी मैं इनको ये सलाह दूंगा कि एट दिस लेवल्स पे एग्जिट करना इट्स नॉट बेटर। आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो में प्रोटेक्शन बाय कर सकते हैं। आप ओएनजीसी के अंदर में 210 लेवल्स पे जो पुट ऑप्शंस अवेलेबल है 3-3.5 रुपए पे, आप पुट प्रोटेक्शन बाय कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर में। सिमिलर सेम क्वांटिटी पे जितना आपने फ्यूचर्स लिया है उतनी क्वांटिटी या फ्यूचर्स ले सकते हैं। 3 रुपए मैक्सिमम डाउनसाइड देख सकते हैं इस पुट ऑप्शंस के लिए, बट स्टिल आपका पोर्टफोलियो थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको। और अपसाइड पे अगर वापस रिवर्सल मिलता है ओएनजीसी पे समवेयर नियर टू 225 के लेवल्स पे, इसको एग्जिट करना ही सलाह दूंगा। ऑलराइट, चलिए बस शुक्रिया नवनीत और राकेश, आप दोनों का समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेंगे इस नोट पर ब्रेक के बाद प्रियंका हमारे साथ जुड़ेंगे और रजत बोस जुड़ेंगे जो आपके सवालों के फटाफट सलाह देंगे। शुरुआती झटके के बाद संभला बाजार, निचले स्तर से सेंसेक्स 250 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी भी 7,650 के करीब। 67 का स्तर पार करने के बाद रुपए में भी अच्छी रिकवरी, डॉलर के मुकाबले निचले स्तर से 12 पैसे की मजबूती, आरबीआई के डॉलर बेचने से सहारा। दिसंबर तिमाही में टीसीएस के कमजोर नतीजों की आशंका, चेन्नई में बाढ़ से काम पर असर, शेयर 1% नीचे। 6 देशों से होने वाले कोल्ड रोल स्टील इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी से कंपनियों को राहत, जिंदल स्टेनलेस का शेयर 6% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% चढ़ा। जीएसटी पर मतभेद दूर करने के लिए कांग्रेस नेताओं से आज मिलेंगे वित्त मंत्री जेटली, कॉन्स्टिट्यूशन बिल में जीएसटी रेट शामिल करने पर सहमति बनाने पर होगा विचार। और सौदा आपका केस पड़ाव में अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं रजत के बोस.com के रजत बोस। नमस्ते रजत, स्वागत है आपका। हमने बाजारों की काफी खराब शुरुआत देखी थी, अब मामला सुधर रहा है, निफ्टी में क्या करें रजत? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि फिलहाल जो स्थिति है वो स्थिति को देखते हुए काफी अच्छी लगती है, इसीलिए कि फ्राइडे बंद करने के बाद में जब रात को 300 पॉइंट डाउ गिरा था, ऐसे ही उम्मीद था कि आज यहाँ पे हो सकता है कि जो पुरानी लो था 7,539 का, वो भी तोड़ के काफी नीचे चला जाएगा। बट द काइंड ऑफ मतलब जिस तरीका का रिकवरी आपने देखे हैं उसको देखते हुए लगता है कि आईआईपी डेटा और यहाँ पे कुछ हद तक डिस्काउंटेड था कि जो बाजार जितना गिरने वाले थे, और 7,550 का जो सपोर्ट है वो काफी अहम सपोर्ट अभी स्थापित हुआ है। अभी जब तक वो टूटता नहीं है तब तक उम्मीद करना चाहिए कि एटलीस्ट एक शॉर्ट कवरिंग रैली होनी चाहिए, जो शॉर्ट कवरिंग रैली आप देख रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे के दिन बैंकों में बहुत शॉर्ट पोजीशन बना था, कई सारे जगह पे शॉर्ट पोजीशन काफी बन चुका है। और सबसे बेहतरीन इंडिकेशन मारुति से मिला था। मारुति 2 दिन 4400 के आसपास जाके, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन जाके वो जो रिकवरी दिया उसको देखते हुए लगा था कि मारुति ने काफी अच्छी प्रदर्शन दिखाएगा, लेकिन वही अमेरिकी मार्केट का निशान जैसा था उसको देखते हुए थोड़ी सी चिंता था। बट आज देखना चाहिए कि 7,650 से लेकर 665 पार कर पाता है या नहीं। जी, तो रजत से हम आगे पूछेंगे स्टॉक स्पेसिफिक सवाल, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अहम खबर, बैंकों के एनपीए घटाने को लेकर हलचल फिर से तेज हो गई। आज रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन बैंकों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में एसडीआर यानी कि स्पेशल डेट रिस्ट्रक्चरिंग पर भी फोकस होगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
देखिए, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग और 525 जैसे जो उपाय आरबीआई ने बैंकों को दिए हैं, उसके पीछे आरबीआई का मकसद ये था कि इन एसेट्स को रिवाइव किया जाए और इनके ऊपर से स्ट्रेस हटाया जाए। खासतौर पे स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग यानी एसडीआर में मैनेजमेंट में बदलाव लाए जाने की उम्मीद थी और यहां पर दरअसल इसका खाका इस तरह का बनाया गया है ताकि बैंक्स पहले अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करके इन कंपनीज पे पूरा कंट्रोल हासिल करें और फिर नया प्रोमोटर ला करके, नया निवेशक ला करके उनको हिस्सा बेचें। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा डर दिख रहा है कि शायद बैंक्स इसका इस्तेमाल केवल प्रोविजनिंग को टालने के लिए कर सकते हैं। तो आरबीआई इस पर बैंकों से बातचीत कर रहा है ताकि इन मामलों में केवल 18 महीने का समय किसी तरह से हासिल करके और बैंक्स प्रोविजनिंग को टाले नहीं, बल्कि वाकई में इन समस्याओं को सुलझाएं और इन एसेट्स को रिकवरी की तरफ ले जाएं। तो इसी मकसद से इस बैठक में चर्चा होगी। इसके पहले आरबीआई अलग अलग बैंक से चर्चा कर चुका है और अब इन सारे बैंकर्स को साथ में बुलाया गया है। एक और मुद्दा जो यहाँ पे आरबीआई ने कई बार पहले उठाया है कि अगर एक बैंक ने किसी कंपनी को एनपीए घोषित कर दिया तो बाकियों को भी कर देना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि दूसरे बैंक्स के बीच में फंड दरअसल रोल हो रहे हों इसको केवल एनपीए होने से बचाने के लिए। तो यहां पर अभी तक आरबीआई ने कोई नियम नहीं बनाया है, लेकिन हो सकता है कि इस बैठक में एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाए और उसके बाद एक नियम बाहर आए। शुक्रिया प्रदीप इन डिटेल्स के लिए। तो एनपीएस की बढ़ती हुई चिंता को घटाने की कोशिश करने वाले हैं आज आरबीआई गवर्नर मिलने वाले हैं बैंकों के प्रमुख से और यहां पे डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मामला भी उनके फोकस पॉइंट में शामिल है। एनपीए और डेट रिस्ट्रक्चरिंग पर होगी बात। और अब सौदा आपका में रुक करते हैं आपके सवालों का। राज चौधरी नासिक से जानना चाहते हैं बीएचईएल भेल में क्या करें। 50 शेयर 278 रुपए की खरीद रही है, छोटी अवधि का नजरिया है। और इसी तरह जस्ट डायल भी इन्होंने 2 से 3 महीने के लिहाज से लिया है। 25 शेयर 1070 रुपए की खरीद। रजत, भेल और जस्ट डायल कैसे इनके चार्ट्स? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि वेल का जो डाउन स्विंग है वो प्राय खत्म होने की जगह पे आ गया है, क्योंकि 160 से लेके 148 तक इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट है। वो सपोर्ट टूटने की पॉसिबिलिटीज काफी कम लगता है। बाजार में वीकनेस तो है, लेकिन वेल को देखते हुए यही लगता है कि इस लेवल पे उनको होल्ड करना चाहिए और एवरेज करने का सलाह तो देना नहीं चाहिए, लेकिन उनका खरीद इतना ऊपर में है कि यहाँ पे एवरेज किए बगैर उनका पैसा वापसी मतलब कोई कैपिटल लॉस ना होके रिकवरी करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि 160 के आसपास आने से आप 148 के नीचे स्टॉप लगा के कुछ फ्रेश खरीदारी कीजिए, एवरेज करके रखिए। जब 220 पार करने की चेष्टा करेगा, जो कि आने वाले दिनों में हो सकता है, तब आप निकल जाने से शायद आपका कोई लॉस नहीं लगेगा। साथ ही में जस्ट डायल भी है इनके पास। 25 शेयर 1070 रुपए की इनकी खरीद रही है। रजत, मैं ये मानूंगा कि जस्ट डायल में जब तक 1050 के ऊपर नहीं चलता है तब तक कोई खास मूवमेंट उम्मीद नहीं कीजिए, क्योंकि ये फिलहाल 950 से लेकर 1050 जब तक पार नहीं करेगा, इसमें कोई खास मूवमेंट होगा नहीं। जी, चलिए अब बात करते हैं अनूप मोदी से, मुंबई से जुड़ रहे हैं। नमस्ते अनूप जी, बताइए अपने शेयर्स। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास जो शेयर है अशोक लीलैंड की शेयर है। 2000 शेयर हैं आपके पास, जो हमें पता चला है 2000 शेयर हैं और 61 रुपए आपके एवरेजिंग का भाव रहा है, 25 रुपए का मुनाफा हो रहा है जी। बुक करना चाहते हैं आप? नहीं, मैं बुक करना नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा टारगेट है 120 अप्रॉक्स इस शेयर के लिए। चलिए रजत से पूछ रहे हैं। रजत, अशोक लेलैंड ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल के नजरिए से अनूप जी ने रखा हुआ है, कैसा लगता है आपको चार्ट्स पर? देखिए प्रियंका, इसमें 100 के आसपास एक डबल टॉप ऑलरेडी बन चुका है और जो डबल टॉप का ब्रेकडाउन पहले तो 81 रुपया तोड़ने से होगा और उसके बाद में 77 रुपीज तोड़ने से वो कंफर्म्ड हो जाएगा। तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि जब उनका पैसा बन रहा है, ठीक है, उन्होंने 2000 शेयर खरीदा है तो 1000 में तो मुनाफा वसूली कर लीजिए, बाकी 1000 को रख दीजिए। आपको 120, अभी 120 जाना मुश्किल लगता है। अगर 100 के लेवल पार कर जाएगा तो 120 तो क्या 135 तक भी जा सकता है, बट फिलहाल पार्ट प्रॉफिट बुक कीजिए। जो पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए अशोक लेलैंड में। संतोष बंगलुरु से जुड़ गए हैं। संतोष सिंह, नमस्ते, पूछिए अपना सवाल।
एक्चुअली मैंने ऑलरेडी SBI में इन्वेस्ट किया है और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं हर महीने इसमें 5,000 से 10,000 रुपया और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। नजरिया अभी फिलहाल तो 3-3.5 साल का है, क्योंकि जब तक मोदी साहब हैं, अगर 2019 में मोदी साहब वापस आते हैं तो फिर से 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। तो अच्छा। आप मुझे ये क्वेश्चन है कि इस पर मैं 5,000 to 10,000 हर महीने कंटिन्यू करूँ? ओके, तो SBI में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं या किसी और स्टॉक पर चला चाहते हैं संतोष? ये अभी तो मैंने SBI ही सोचा है। ओके। सो संतोष सिंह जी को इंडिया ग्रोथ स्टोरी में दम लग रहा है रजत। SBI इनको पसंद आ रहा है और कह रहे हैं कि अभी तो 3-3.5 साल तक रहेंगे, आगे का कॉल लेंगे अगली सरकार जब बनेगी तब। लेकिन SBI पे क्या ये कंटिन्यू करें? पर मंथ 5,000 इसमें और 5,000 का निवेश करके ऐड करते रहें? प्रियंका, इनको अच्छी बात सुनाने मैं नहीं सकूंगा, क्योंकि हम बता रहे हैं एक चीज, उनको सिर्फ बैंक, स्टेट बैंक ही नहीं, कोई भी बैंक में अभी निवेश एक्सेप्ट HDFC बैंक, कोई भी बैंक में अभी तुरंत निवेश मत कीजिए, क्योंकि इनका लोन बुक और जो एसेट क्वालिटी, एसेट के क्वेश्चंस है, सिर्फ PSU बैंक ही नहीं बाकी में भी है। तो इसमें आप 5,000 से 10,000 रुपया हर महीना डालते जाएंगे, लेकिन जब तक ये जो गवर्नर रघुराम राजन ने जो चेष्टा कर रहे हैं कि 2017 तक NPA फुल्ली वो एटलीस्ट रिकॉग्नाइजिंग दी NPAs हो जाएगा, उसके बाद में जो एसेट में सुधार करने की चेष्टा होगी, उसके वो जब तक नहीं होता है तब तक कोई खास मूवमेंट ये सब में उम्मीद मत कीजिए। और एक चीज भी बोलना है, जब कोई सेक्टर में आप पैसा लगा रहे हैं, देख लीजिए कि उसमें ओवर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ओवर सप्लाई सिनारियो बनने की स्थिति आ गया नहीं। बैंकों के लिए उसका लोन बुक इतना बड़ा हो गया और NPA इतना बड़ा हो जाता है, तो उसमें पैसा लगाना अभी शायद मेरे लिए, मैं मानूंगा कि अच्छा नहीं होगा। जी, और आज वैसे भी एक अहम बैठक भी होने वाली है। RBI प्रमुख जो है वो मिलने वाले बैंकों से और NPA उनकी चर्चाओं में शामिल रहेगा और बहुत अहम मुद्दा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, आगे शहरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे रजत के बोस के साथ। CNBC आवाज पर चल रहे ITL के इस महामुकाबले में ट्रेडर्स विमेन और कमोडिटी लीग में पिछले हफ्ते कौन विजेता रहे आपको बताते हैं। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, रखते हैं आपके सामने इसका स्कोर बोर्ड। शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स लीग विजेता के साथ, और दिल्ली के अमित कुमार हैं जो चल रहे हैं सबसे आगे। ऑलमोस्ट 250% का रिटर्न इन्होंने कमाया है बाजार में। ट्रेडर्स में अमित कुमार है पहले पायदान में और इनसे ठीक नीचे मिस्टर विंध्याचल हैं, 125% का रिटर्न उन्होंने कमाया, लेकिन अमित कुमार सबसे आगे 250% के रिटर्न के साथ। विमेन लीग के स्कोर बोर्ड पर नजर, और मुंबई की मिताली सुरेश जसपारा मार रही हैं बाजी, 86% का रिटर्न इनके चॉइसेस ने इन्हें कमा करके दिया है। कमोडिटी लीग के स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं और यहां पर विनर अभी आपके सामने रखते हैं, और नागपुर के वसंत राव सरकाते 178% के रिटर्न के साथ सबसे ऊपर पायदान में वसंत राव सरकाते जी हैं, नागपुर के ये रहने वाले हैं। और इंडियन ट्रेडिंग लीग में हम अब बातचीत करते हैं अपने विजेताओं से, और सबसे पहले अमित कुमार से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं जिन्होंने 250% का रिटर्न कमाया है। इनकी स्ट्रैटेजी बढ़िया रही है, ITC और ICICI इनके पसंदीदा स्टॉक रहे थे जिन्होंने इन्हें अच्छी कमाई करके दी है। इनसे हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन अमित कुमार सबसे आगे 250% के रिटर्न के साथ। और शहरों का शहंशाह, ये भी एक कॉन्टेस्ट इंडियन ट्रेडिंग लीग में चल रहा है, जहां देश के 5 बड़े शहर दिल्ली, NCR, मुंबई, कोलकाता, पुणे और बंगलुरु के दर्शक भाग ले रहे हैं, और इसी का स्कोर कार्ड आपके सामने है। और शहरों के शहंशाह में अभी शहंशाह बन रहे हैं सलियन लक्ष्मणा संदीप, 43% के रिटर्न के साथ बेंगलुरु के हैं ये, और 43% का रिटर्न कमा रहे हैं सलियन लक्ष्मणा संदीप। शहरों के शहंशाह में ये है बेंगलुरु से विजेता संदीप जी, 43% के रिटर्न के साथ अच्छी कमाई दे रहे हैं। और अब हमारे साथ अमित जुड़ रहे हैं जो कि इंडियन ट्रेडिंग लीग के स्कोर कार्ड में सबसे ऊपर हैं, ट्रेडर हैं। और नमस्ते अमित जी, स्वागत है आपका।
मुबारक हो, बहुत बढ़िया रिटर्न आप कमा रहे हैं, 250% का रिटर्न। अमित बताइए स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? मैम नॉर्मली रहते सही क्या जैसे मार्केट में छोड़ने से पहले मैं स्टॉप लॉस और टारगेट में क्या रहता है जी? अच्छा, स्टॉप लॉस और टारगेट का ख्याल आप हमेशा रखते हैं? हाँ जी, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट में रहता है जी मैम। ओके, तो क्या आपको ये ऐसे बाजार ऐसा चल रहा है कि काफी उठा पटक है, लेकिन उसमें भी आपने अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी रखी है कि कमाई की है आपने? खास स्टॉक्स आपको जिसने कमा कर दिया वो कौन साबित हुए अमित आपके पोर्टफोलियो में? मैम मेरे ITC और ICI बैंक शॉर्ट साइड। ओके, और आप शॉर्ट किया था आपने इसमें। अब आगे नंबर 1 की पोजीशन को बनाए रखने के लिए अगला कदम क्या उठाने वाले अमित, कुछ टिप्स दीजिए। मैम वॉलेटिलिटी ज्यादा है ना, तो इंट्राडे ट्रेड करता हूँ मैम। मैं ये 16 तारीख को जो आउटकम आएगा ना उसके बाद कोई ट्रेड करेंगे। अच्छा, तो जो सेंट्रल अमेरिकी बैंक के आउटकम पर आपकी भी नजर रहने वाली है कि क्या करें। और एक टिप जो अमित आपने दिया है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, वो ये कि हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया अमित कुमार ने, और इसीलिए इंडियन ट्रेडिंग लीग के स्कोरबोर्ड में सबसे ऊपर है अमित कुमार। 250% का रिटर्न इन्हें मिल रहा है अपने पोर्टफोलियो के जरिए, और स्टॉप लॉसेस का खास ख्याल रखा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे स्टॉक फटाफट के साथ। रजत बोस है आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का, और आज हमारा साथ दे रहे हैं रजत बोस जो देंगे जवाब आपके तमाम सवालों का। स्टॉक्स फटाफट में पहला सवाल अनिल कुंद्रा का जलंधर से, स्वराज इंजन्स में क्या करें? 300 शेयर है, 863 रुपए की खरीद है। प्रियंका, इसमें मेरे ख्याल से उनको रखना चाहिए 830 के नीचे स्टॉप लगा के। ऊपर में मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये 950 से 975 तक चलेगा, जो कि मैं मार्च तक उम्मीद करता हूं। तो 830 के नीचे स्टॉप लगा के बने रहिए। रामनाथ बलिगा का अगला सवाल, स्पार्क के 800 शेयर, 100 रुपए की खरीद। कौन सी काउंटर बताया? स्पार्क जी, स्पार्क। मैं बोलूंगा कि इसमें 310 के नीचे स्टॉप लगा के बने रहिए। इनमें ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च भी करते हैं और काफी अच्छी परफॉर्मेंस पिछले दिनों में दिखाया। फिर से एक बार ऊपर में 380 से 440 यहां तक जाने की उम्मीद कीजिए। फिलहाल 310 के नीचे स्टॉप लगा के बने रहिए। राघवेंद्र कुमार के पास है गीतांजलि जेम्स के 1000 शेयर, 48 रुपए की खरीद रही है। देखिए, ये एक काउंटर है जिसमें कि हम तो ये बोलेगा कि आपको तो उनको अभी बने रहना चाहिए 32 रुपया का स्टॉप में, और चाहे तो इस भाव में और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये चार्ट बहुत अच्छी बेस फॉर्मेशन के बाद में ऊपर उठने की चेष्टा कर रहा है। आने वाले दिनों में अच्छा करेगा, ऐसे ही उम्मीद करता हूं। अगला स्टॉक अपोलो टायर्स, वरुण गुप्ता दिल्ली से पूछ रहे हैं, 1000 शेयर होल्ड करते हैं, 242 रुपए 50 पैसे की इनकी खरीदारी रही है। इसमें मुझको निकाल जाने का ही सलाह देने का है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन होके चार्ट अभी काफी खराब हो चुका है। स्ट्रक्चर जो है वो एकदम पसंद लायक नहीं है। मैं बोलूंगा निकल जाइए। अनुज दुबे जानना चाहते हैं आरएस सॉफ्टवेयर में क्या करें? 900 शेयर, 399 रुपए की खरीद। इस भाव में और कैसे बोलूंगा कि आप निकल जाइए। मैं यही कहना चाहूंगा कि 117 के नीचे स्टॉप लगाइए और क्या करेंगे, बने रहिए, बट एवरेज करने का सलाह मैं नहीं दे रहा हूं। सिद्धांत जामनगर से, टीएनपीएल 600 शेयर, 169 रुपीज 39 पैसे इनकी खरीद का भाव रहा है। मैं बोलूंगा 205 के नीचे स्टॉप लगा के बने रहिए। इसमें आने वाले दिनों में अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद कीजिए। ये काउंटर का चार्ट अच्छी है, हो सकता है आपको अच्छा मुनाफा मिल जाए। और आपके शहर कोलकाता से रतिन दास जानना चाहते हैं IVRCL में क्या करें? 1000 शेयर है, 21 रुपए 20 पैसे की खरीद है। एग्जिट कर लीजिए, और कुछ सलाह देने का नहीं है। शुक्रिया रजत, हमारे वक्त निकालने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आज के लिए?
नहीं, इनमें से जो भी काउंटर मैंने डिस्कस किया है, कोई काउंटर मेरा पोर्टफोलियो में नहीं है और मेरा एसोसिएट का भी पोर्टफोलियो में नहीं है। कोई चीजों में मेरा और मेरा फैमिली या एसोसिएट उनका फैमिली का 1% से ज्यादा फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी नहीं है। धन्यवाद आपका रजत। सौदा आपका में आज मेरे साथ भी इतना ही। मुझे ये इजाजत दीजिए, नमस्कार। आगे कमोडिटी राउंड अप।